Good morning, students. Today we are going to discuss about consumer's equilibrium under ordinal utility approach. Cardinal utility approach we have already discussed. So today we will discuss about ordinal utility approach. What is ordinal utility approach? There is two concepts of utility approach. First is cardinal and second is ordinal. In cardinal approach, that which is given by Professor Marshall. Professor Alfred Marshall has given the concept that we can count the utility of a consumer in utils in terms of arithmetic numbers like 1, 2, 3, 4. Means we can calculate, we are able to calculate, we are able to know how much satisfaction a consumer is getting by the consumption of any particular company. But at the same time, when we are discussing about that, we have to just understand one more concept which is given by Professor Hicks. He has given the concept that we can only rank the satisfaction, but we cannot count the satisfaction whatever we are getting from the consumption. We cannot count that. So related to that, we have just studied about two concepts which are related to ordinal utility approach. The first we have studied about indifference curve, and second we have studied about budget line. What is indifference curve? Indifference curve is the combination of two goods which gives the same level of satisfaction to the consumer. किसी कंज्यूमर को मिलने वाला दो ऐसे गुड्स का कॉम्बिनेशन which gives him the same level of satisfaction. At the same time, when we are talking about budget line, the budget line is the combination of two goods. It's also a combination of two goods, but it is that combination which a consumer can consume by his given income. Two different things are there, but the combination in both the concept, the combination of there is a combination of two goods. First thing, in indifference curve shows the combination of two goods which gives the same level of satisfaction to the consumer. कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे, वो कॉम्बिनेशंस को शो करता है इंडिफरेंस का. एंड बजट लाइन क्या शो करता है? बजट लाइन शो करता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम से किसी गुड के कौन से दो कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम कर सकता है. किसी भी गुड के टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जिनको कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, दैट इज शोन बाय बजट लाइन. अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है. तो देयर आर सम कंडीशंस which are related to this concept. And the first one condition is this, that MRS should be equals to MRE, marginal rate of substitution, should be equals to marginal rate of exchange. Marginal rate of substitution should be equal to marginal rate of exchange. तो अब इन दोनों में जो डिफरेंस क्या है, MRS शो करता है लॉस अपॉन गेन को, लॉस अपॉन गेन, एंड MRE शो करता है PX अपॉन PY को, प्राइस ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y. MRS ऑल्सो शो द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, द स्लोप जो भी उसका स्लोप है, एंड MRE शोज द स्लोप ऑफ बजट लाइन. MRE शो करता है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज शो करता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन और MRE बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन. उसी को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं. द सेम थिंग्स आर देयर. अब सेकेंड कंडीशन क्या है? व्हेन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स एट द पॉइंट वेयर MRS इज इक्वल्स टू MRE. यहाँ पर MRS MRE के इक्वल होगा दैट पॉइंट. तो दो कंडीशन हमारे सामने आती हैं. फर्स्ट कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मीन्स बजट लाइन का स्लोप एंड इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है? ये इस तरीके से, ये रहा. इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है? इस तरीके से. और बजट लाइन का स्लोप स्ट्रेट लाइन. इट इज कॉन्वेक्स एंड दिस बजट लाइन इज स्ट्रेट. बजट लाइन होती है स्ट्रेट और बजट लाइन का जो स्लोप है दैट इज स्ट्रेट, एंड इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन.
तो ये कह रहा है कि जिस सेकंड कंडीशन कह रही है कि जिस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम हो रहा हो, जहां पर ये दोनों इक्वल हो, वहां पर बजट लाइन कॉन्वेक्स होनी चाहिए। कॉन्वेक्स मतलब जहां पर उसकी ये पीठ जो है उठी हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स होते हैं कॉन्वेक्सिटी जो शो करते हैं बजट लाइन की। तो दैट शुड बी कॉन्वेक्स, मींस ये सारे किस तरफ होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ओरिजिन की तरफ देख रहे हो, देखो ऐसे सारे एक ही लाइन में, जब ये एक तरफ इस तरफ देख रहे होते हैं तब ये होता है कॉन्वेक्स बजट लाइन, डिफरेंस कर्व तब कॉन्वेक्स होता है। तो दो कंडीशन हमारी कैसे फुलफिल होती है, अब हम उसको थोड़ा सा समझते हैं इस डायग्राम में कि इफ देयर आर अब अगर ये सारे इंडिफरेंस कर्व हैं जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, by which consumer is getting the satisfaction, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है कि अगर इंडिफरेंस कर्व सारे दिए गए हैं, इंडिफरेंस कर्व यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल, कंज्यूमर के पास अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल है। अब कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कहाँ करेगा, भाई ये हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मींस IC3 is giving more satisfaction than IC2 and IC2 is giving more satisfaction than IC1 and IC1 is given more satisfaction than IC indifference curve. So where the consumer will make his equilibrium, भाई कंज्यूमर अगर कंज्यूमर की विश पर छोड़ दी जाए तो कंज्यूमर यहीं पर करेगा अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर मिल रहा है उसको, हियर ही विल जस्ट ट्राई टू मेक दैट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर अपना कंजम्पशन करना चाहेगा इस, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि उसकी इनकम कितनी है, हाउ मच ही इज हैविंग, व्हाट इज द इनकम, व्हाट ही इज हैविंग इन हिज पॉकेट। सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स बजट लाइन, बजट लाइन शो करती है कंज्यूमर की इनकम। अब कंज्यूमर की इनकम लाइन जो है फॉर एग्जांपल ये है, ये है कंज्यूमर की इनकम लाइन यानी कि बजट लाइन। तो ये बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, कहाँ पर टच कर रही है, इस पॉइंट पर, हियर इट इज टचिंग, ये एक दूसरे को टच कर रहा है, मींस यहाँ पर जो बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है और जो बजट लाइन का स्लोप है दैट इज इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, दैट इट शुड बी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए हमने एक लाइन बनाई थी, क्या ये इसी लाइन पर आ रहा है, यस इट इज कमिंग ऑन दैट लाइन, तो क्या है यहीं पर कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम करेगा। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सिक्स यूनिट ऑफ वाई गुड, ये कुछ भी दिया हो सकता है एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, 6 यूनिट ऑफ वाई गुड एंड 3 यूनिट ऑफ एक्स गुड, मीन्स कंज्यूमर बाय हिज कंज्यूमर कैन कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड 6 यूनिट ऑफ वाई गुड by his given income to get the maximum level of satisfaction, and at that point he will make his equilibrium. Clear? This is the concept of consumer's equilibrium under ordinal utility approach. यहाँ पर वो अपना equilibrium कर देंगे. Clear? Okay. Thank you.